क्यों रोक करके रखा 3 PM को? I had to show something. That's why I just told you to. I didn't tell you that please go. One thing I must tell you that life is full of competition, and if you are ready to fight that competition, then definitely you can win in a very short period of time. Otherwise, it is quite clear that you are going to face problem in your whole life. Now, choices are yours. That which type of life you want to do. You want to enjoy with your life with all things, or you want to just struggle your life with lots of responsibility, loans, and each and everything. These all have become the part of our life. Now, when I started my journey in my life, I had one quality, and still I have one quality, that is I am very rigid towards anything. And until unless I don't get success, I don't leave it. Like that, I would like to tell you one thing, that everything is possible. If you are saying that I can't do like that, I am very weak, I cannot speak in English, I have lots of problems, I am from middle class, below middle class family, I have educated myself from Bihar board and you can say that government school, then you are only and only just you can say that you are only and only pretending with yourself. You are giving lots of excuses. If I talk about me, my father was a simple mistri, and his salary was only 2,000 in that period of time. But he decided to just leave his village, and he just give his own land to the laborers to just work in there, and he was going time to time. But he just left his village just because of that. I have 2 children, and if they will not be educated, then what will they do? And I was a student who was facing a lot. Even what was money, I know what was the pain of that money. And after that, I just thought that I have to become something. And I can just tell you that in my whole, you can say that family members, not in my whole, not my personal family, even in our, you can say that patidar or jo bhi cheez hote hain, in some way I am the educated person. I am the first educated person of my whole, you can say that relatives. Because राजपूताना में एक चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास धन संपदा इतनी होती थी, बस उसी समय गुमान में रहते थे। आज उसका नतीजा है कि आज लोग बेचकर भी अभी भी लोग खाते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ होते हैं, और उनमें अहम और ईगो की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। बट द टाइम केम when my younger brother just told to my father that I have to do hardware engineering, and for that I want to go to Delhi. And that point of time my father was in critical situation, and he just told me that how can I manage both of you. Then I just told him that please आपको जो भी करना है please do for him. I can manage myself. And I just decided कि मेरे को भैया पढ़ना है, and मैं पढ़ कर छोड़ूंगा. And I just started tuition, and I was educating myself. मेरे पास एक रूम भी नहीं होती थी, एक रूम और एक बरामदा था. I was just using that बरामदा, जिसको दोनों तरफ से चौकी से घेर करके मैं वहां बैठ करके पढ़ा करता था. I was knowing that pain. वो पेन अभी भी याद है हमको कि how I was just managing my life style and which type of problem I was facing. Even मेरे पास एक साइकिल भी नहीं होती थी. 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल चल करके मैं स्कूल जाता था, वो भी गवर्नमेंट स्कूल, और वहां से मैं पढ़ाई करता था. कहां ना कहां से भूत सवार हो गए कि भाई मेरे को भी अंग्रेजी सीखना है. ये भूत कहां से आ गया आई डोंट नो. जब लोगों को देखते थे या दो लोग बोलते थे तो लोग कहते थे बाप रे बहुत पढ़ा लिखा इंसान है. I'm just talking about in near about 2000 or 1999. The person who was speaking English, he was seen in a very different intense mood, and he was just saying like a reputed youth person, and he was giving that kind of, he was just taking that kind of respect from the society. And
And I decided, I just thought that मेरे को भैया इंग्लिश सीखनी है। उस समय इंग्लिश की स्पोकन इंग्लिश जो 3 महीने का कोर्स ज्वाइन किया था, उस समय 2500 फीस थी। बिकॉज मैंने बस एक ही चीज सीखा भाई, चलो किसी तरह इंटरमीडिएट और ये सब तो कर लिया, लेकिन पढ़ाई मैं अच्छे जगह से करूंगा। When I just entered in the English classroom, I just saw that there were 40 students in that batch. मेरी भी बारी आई पोडियम के पीछे बुलाने के लिए। I just came and what happened with me that मैं हकलाने लगा, मैं बोल नहीं पाता था। And जितने भी स्टूडेंट बैठे थे, they were laughing at me. मेरे को छोड़ देना चाहिए था कोचिंग आई थिंक, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मैंने बस यही सोचा कि लोगों को हंसना है, हंसने दो, मेरे को भैया इंग्लिश सीखना है। एंड मैं मेहनत किया। जब मैं देखा कि सर इनका नाम लेते थे, उनका नाम लेते थे, आई कांट फॉरगेट द नेम ऑफ दैट पर्सन, अभी भी उनका नाम याद है। आई डोंट नो अभी वो किस अवस्था में है, इवन पटना भी जाता हूँ तो मिल नहीं पाता हूँ। द नेम ऑफ दैट पर्सन इज मोहम्मद शमसुद्दीन। आज जो कुछ भी इंग्लिश है उन्हीं का देना है, एंड आई जस्ट गिव थैंक्स टू हिम। तो मैं भी सोचा कि मेरे को भी अपना एक नाम कमाना है इस इंस्टीट्यूट में। नाम कमाना इन द सेंस कि जो भी रिकॉर्ड्स बनेगी मैं उसको तोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए उसके लिए। एंड मैं पागल था किसी चीज को लेकर के, मैं अभी भी पागल हूँ, बहुत पागल हूँ। और ये पागलपन मेरे अंदर है। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन जो मेरे अंदर में पागलपन आ जाता है उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे किसी चीज से रिलेटेड हो। जो मैं सोचूंगा वो पा करके छोड़ता हूँ। और ये जिद्दीपन मेरे को बहुत दिनों से है। एंड यही जिद्दीपन को लेकर के मैं इंग्लिश भी सीखा, मैंने रिकॉर्ड्स भी बनाया। अभी भी उस लड़की का नाम याद है जिसका नाम सुजाता था। एंड जब वो रिप्रेजेंट थी अपने बारे में वो एक कॉपी लिखी थी, एक कॉपी था, उस कॉपी में टोटल पेज था 375। वो अपने बारे में 375 पेज में लिखी थी। और मैंने सोचा कि इस रिकॉर्ड को अंदर ही अंदर तोड़ दूंगा। दशहरा का टाइम था, 4 दिन की छुट्टी मिली हुई थी, सब लोग घूम रहे थे, मेरे को ननिहाल जाना पड़ा और मैं वहां जाकर के लिखाई का काम चल रहा था। और मैंने 423 पेज दे करके उनको सपोर्ट किया। सभी लोग मेरे से हाथ मिलाए एंड आई वाज वेरी हैप्पी ऑन दैट डे कि लाइफ में मैंने एक काम किया कि मैंने अपने बारे में 423 पेज में लिख करके दे दिया। आई डोंट नो कैसे हुआ, आई डोंट नो, शायद उसी का रिजल्ट है कि आज मैं इंग्लिश में थोड़ा बहुत यहाँ हूँ और आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। और ये आज मेरी इंग्लिश एक प्रोफेशन बन गई। जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश आई एम जस्ट अर्निंग समथिंग एंड आई एम मैनेजिंग माय होल लाइफ एज वेल एज माय फैमिली आल्सो, जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली इंग्लिश। अनदर थिंग इज दैट मैं स्पीच कंपटीशन होती थी, 4-5 स्पीच कंपटीशन हुई, आई वाज रिजेक्टेड, आई वाज नॉट एबल टू गेट एनी प्राइज। मात्र 3 ही प्राइज होता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ तो हम बहुत सारे प्राइज देते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए सर्टिफिकेट देते हैं, कभी कभी स्नैकर्स दे देते हैं, तो 10 को प्राइज है, इधर प्राइज उधर प्राइज इधर प्राइज, सब में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं लोग। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर ओनली 3 प्राइजेस एंड लास्ट में मेरे को एक प्राइज हमें भी मिला, आज भी याद है, वो 3rd डिवीजन का प्राइज। और जिस समय मैं स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, वो आप देख सकते हैं वहाँ पर सिंह जो लिखा हुआ है, वो जो मैं ही हूँ, वो मेरा जीवन का पहला अचीवमेंट था जब स्पीच कंपटीशन में 3rd प्राइज लिया था। दैट वाज मी, वो मैं था। बड़ा बड़ा मूंछ रखता था उस समय, ठीक है, पतला दुबला इंसान था, पोडियम भी वहीं पर और वो माइक पर मैं बोल रहा था। अब वो टाई वाला देख रहे हैं, जो उसके बगल में एक टाई है, संजीत के बगल में, संजीत जहाँ लिखा हुआ है, वो मैं चिड़ियाघर में पोस्टल पार्क में कोचिंग भी स्टार्ट किया था। तो उस समय मैं अपना कोचिंग भी चला रहा था। इसके अलावा बाकी जो फोटोज है वो सब मैं नौकरी कर रहा था, उसके दरमियान ये फोटो है, कभी गया का है, कभी हाजीपुर का है, कहीं कोलकाता का भी है। तो तरह तरह का इसमें फोटो किसी ने ये हमें गिफ्ट में दिया था। तो इस तरीके से ये चीज था। तो आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि आप अपने आप को शेर समझते हैं। शेर, आज एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा हो जाता है, मैट्रिक पास कर लेता है, कहता है हम तो शेरे हैं, और वो लड़ने मारने के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। अपने घर मोहल्ले में देखिएगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे पनपते हैं, भाई हम तो शेर है, हमसे बड़ा। मेरे भी बगल में क्या, अंकल जी कुछ भी होगा बता दीजिएगा, हम तो है, हिला देंगे सबको, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं। तो शेर के ऊपर सवा शेर है। आज आप बोलते हैं कि हम सर 5 घंटा पढ़ते हैं, अगला आदमी 10 घंटा पढ़ रहा है। आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं, उसके अगला आदमी 18 घंटा पढ़ रहा है।
और वही इंसान एक्चुअल में सक्सेसफुल बनता है। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि आपने अभी देखा, मैंने कुछ लोगों को आपके सामने रखा, बस वो आए, उनका मन, उनको था 4 बजे के बैच में जाना, पढ़ना था उनको, आप लोगों को हटाने के बाद मैं उनको रखा और सडनली मैं यहाँ पर बुला दिया, मैंने बात भी नहीं किया, आप लोग देखे भी, सडनली मैं बुलाया, सोशल मीडिया पर लोग बोले। तो इससे यही सीख मिलती है कि हम गूगल की छपन विद्या कब तक करेंगे, कब तक हम कॉपी देखेंगे, कब तक पीछे देख करके बोलेंगे, क्या इज इट द सॉल्यूशन, क्या यही लैंग्वेज है, क्या ऐसे हम लैंग्वेज सीख जाएंगे, क्या रोड पर कोई इंसान मिल जाएगा तो क्या गूगल से पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, हाँ व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, इज इट द सॉल्यूशन? नो। Here we have come here to speak in English, and for that you have to just enhance your skill, you have to enhance your talent so that you can just do better, but you don't want to enhance। दिल पर हाथ रखकर बोलिए, घर पर कितना घंटा मेहनत करते हैं इंग्लिश के लिए? अब मेहनत नहीं करना है, कुछ भी नहीं, रीडिंग भी करते हैं, राइटिंग भी करते हैं, स्पीकिंग भी करते हैं, लिसनिंग भी करते हैं, कितने दिन करते हैं? कितना देर आप अंग्रेजी में यहाँ से जाने के बाद बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। यहाँ तक कि 4 वर्ड भी जुबान से नहीं निकलता, चैटिंग भी हिंदी में ही चलती है, इवन इस क्लास में आने के बाद भी हिंदी में गप आना चालू हो जाता है। आप दिल से कोशिश ही नहीं करते। अगर आप दिल से जिस दिन कोशिश करना चालू कर दीजिएगा ना, तो मैं क्या बोलूं, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। आपको 1 महीना नहीं लगेगा अंग्रेजी सीखने में, लेकिन आप वो दिल से चाहती नहीं है। बस एडमिशन ले लिया, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सब चीज करते हुए पढ़ रहे हैं, तो लिख लीजिए भाई। मैं लास्ट दैनिक भास्कर के मीटिंग में अटेंड किया था, वहां एक ही बात बोला गया, अगर लड़कियों के लिए 2 चॉइस है, बी इंडिपेंडेंट एंड लाइफ में जो भी करना है अपने आप के बल पर करना है, नहीं तो बी डिपेंडेंट, कि आपकी शादी एक हस्बैंड से कर दी जाएगी, वो हस्बैंड के डिपेंडेंसी में रहेंगे। 10 रुपया भी मांगना है तो पहले मूड देखिएगा कि मांगे कि नहीं मांगे, फिर मांगते हैं। तो चॉइसेस आर योर्स, दैट कि लड़कियों को क्या करना है, लड़के का एक ही चॉइस है, भैया किसी तरह करना है, नहीं किए तो दिल्ली मुंबई का रास्ता दिखा हुआ है, ठीक है, और वहां जाकर के 10-20 हजार का नौकरी कर रहे हैं। मैंने एक चीज ये भी देखा, संडे को एक मीटिंग में गया था, याद रखिए 2030 जो आ रही है, ये 2030 में वही इंसान सरवाइव कर सकता है जिसकी मंथली सैलरी कितनी है, 2 लाख। तो 2030 में वही सरवाइव कर सकता है जिसकी मंथली सैलरी एटलीस्ट इतनी होगी। अभी के डेट में ये आपका बात करें 2024, अभी कम से कम 1 लाख तो चाहिए ये सरवाइव करने के लिए, एक फैमिली को, हम तो हमारे 2 के लिए। ये सरवाइव करने के लिए यहाँ से बचत की उम्मीद नहीं कीजिएगा, सेविंग की बात मत कीजिएगा। सेविंग करने के लिए 1.5 लाख रुपया चाहिए, ताकि 25-30 हजार रुपया मंथली हम सेविंग करें फ्यूचर के लिए। तो चॉइसेस आर योर्स, व्हाट डू यू वांट टू डू एक्चुअली। तो यही चीज है, इसी चीज को है। नाउ आप 2030 में आप लोग के 6 साल ही बचा है, 6 साल में मनी का वैल्यूएशन कहां से कहां भाग जाएगी, यू कैन जस्ट सी। तो नाउ, और उसमें भी आपका सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट आ रही है, दैट इज एआई, जो ना जाने कितनों में नौकरी खा जाएगी। तो नाउ इन दिस एरा only one person can survive who has talent, who has something, who has motivational skill, who wants to do something in their life. Otherwise your whole life will be only full of struggles, and तब उस समय पछतावा फील होगा, क्या नहीं किया, क्यों नहीं मैं लाइफ में। Please I request you, if you have come here, तो प्लीज स्पीक इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल, सी योरसेल्फ ऑन द टॉप। जब 4 PM पे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं तो 8:30 के कैसे होंगे जो आपने स्पीच कंपटीशन के दौरान देखे थे। तो द बिगेस्ट चैलेंज, और जब यहाँ पर ऐसे हैं जो सिर्फ सीख करके अभी खड़े हुए हैं, तो बाहर कैसे होंगे। जब दिल्ली मुंबई में जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेगा, वहाँ के स्टूडेंट से मिलेगा,
साउथ में जाकर के मिलिएगा कि वहां का इंग्लिश कैसे होंगे, तब तो समझेंगे कि भाई हम तो उनके सामने गीदड़ हैं अभी। ठीक है, वो लोग तो 30 मार खान है। तो व्हाट आई एक्चुअली वांट टू टेल यू, प्लीज जस्ट थिंक एंड फोकस ऑन योर गोल ओनली। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, तो प्लीज sacrifice everything, be regular, be consistent and do something to achieve your goals so that you can do better. ठीक है, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यही मेरी आपसे गुजारिश है। एंड प्लीज 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 कीजिए। मैं फिर से बोलता हूँ, इतना कोई नहीं बताएगा, कोई टीचर नहीं बताएगा। आएगा, चैप्टर खोला, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म, जाइए। अगला दिन सिंपल इंटरेस्ट, जाइए, बस हो गई। बट मैं आपको करियर और प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, और यही प्रैक्टिकलिटी है। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है ना। आज कहते हैं ना कि मेरे एक अर्पण बैनर्जी थे, सन जेवियर्स में अभी भी पढ़ाते हैं। मुंह देख करके एक ही इंसान पैसा देगा, आपके मम्मी पापा, दुनिया में कोई नहीं देगा। और जहां नौकरी करने जाइएगा ना, 10,000 देगा ना, 10 लाख पहले बात सुनाएगा पूरा महीना, तब 10,000 देगा। खून आपका चूस लेगा। एक्सप्लॉइटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, मेहता जी का कहानी देख रहे हैं ना? जी सर, यस सर, बॉस से कितना डरते हैं? यही होता है जीवन में, लाइफ में। ठीक है, क्योंकि मैंने बस एक ही चीज सीखा 8 साल से नौकरी में, जे मस्ट जस्ट, ओ मींस ओबे और बी मींस बॉस, दूसरा कुछ नहीं सीखा। ठीक है, दिस इज। और प्राइवेट से, सरकारी से ज्यादा प्राइवेट में जितना ग्रोथ है उतना किसी में नहीं है। ठीक है, हम लोग सरकारी इसलिए खोजते हैं कि लाइफ सिक्योर हो जाए, दैट्स इट। लेकिन प्राइवेट आपको जो देता है वो कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, इसमें आप वहां तक पहुंच सकते हैं जितना एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो 46 लाख और 45 लाख के सैलरी पर काम कर रहे हैं सालाना, बट इतनी हमारे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं है। और वहां से भी चांसेस है आगे बढ़ने के लिए। तो चॉइसेस आर योर्स कि वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ। ठीक है, और बी कंसिस्टेंट विद ईच एंड एवरीथिंग सो दैट यू कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, चलो, थैंक यू। ज्यादा नहीं।